Hello, good morning, Hi sir. Jagdish. Morning, morning. How are you? Uh, I'm fine, sir. Good. So basically, you're from Maharashtra. Hi, sir. I'm from Maharashtra. Where in Maharashtra? Which district? So Maharashtra is a state. No, obviously, from which district you exactly belong? I'm from Solapur, sir. Acha, from Sola. That's really great. So it's the first attempt for the ICGSE, or have you earlier appeared for this? So I have appeared for SSB, not for PSB. Okay, not for the PSB. So through which entry you have appeared for the SSB? So it was my technical entry. Okay, technical entry on 10 plus 2 level. So that Yes, sir. time there was JEE exam is compulsory or only board percentile is important for the TS entry? So that time the criteria was based on the 12 percentage. Only 12%. Okay, what is your percentage in 12? So it was 89.2. Okay, that's very nice. So basically, you completed your BTech or simple graduation? So I'm graduate BSc. Okay, you completed BSc. In which you have completed your BSc? So this year only, this year Acha, in the month of June. acha, in month of June. That's really great. So you are already aware about the ICG AC entry, or this year you got updated about the ICG AC entry? So I just came to know about the ICG entry through your channel, YouTube channel. So I was Yeah, basically searching for the what other ways I can got to wear exactly. the uniform. So I got the Right. ICG entry. So I just applied. Exactly. I purchased your that course, and I cleared the exam this time, first That's time. great, and really, really congratulations in the first attempt clearing. It's a really good task. Okay, have you appeared for the serious examination, FCAT examination, TA examination, and other examination, which is based on the graduation degree only in the defense forces? Last time I appeared for the CDS OTA, but Okay. I was unable to clear it. Okay, no issue. This time you have really, really nice opportunity through the series because in the OTA, the first time huge vacancy in the OTA, around 275 vacancies for the boys in the OTA and 18 for the Yes, girls. Yeah. After a long time, we have seen such a huge vacancy because earlier in the serious entry, we are getting very less candidate for the serious under 350 only. But this time they increase 400 type of candidates for the serious entry and especially OTA increase lot OTA में वैकेंसीज काफी अच्छी हैं तो दैट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो इस बार आपको अच्छे से मेहनत और करना होगा बिकॉज वो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है तो व्हाट्स योर परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन sir. व्हाट्स योर परसेंटेज इन ग्रेजुएशन में परसेंटेज क्या है आपके Sir, 66% चलो बढ़िया है graduation. जी कोई नहीं हमारे को तो आंकड़ा 60 का ही है कि 60 बन जाने चाहिए एटलीस्ट वी शुड अप्लाई फॉर द एफकैट एंड आईसीजीएसई तो अभी एफकैट के हाँ लिए भी वही अप्लाई किया कि नहीं किया एफकैट के लिए दिया था लास्ट वाला ये वाला अप्लाई किया कि नहीं ये सर एफकेट का मैंने अभी अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम एफकेट दूंगा, इससे पहले नहीं दिया मैं. चलो बढ़िया है जी नो इशू माय पॉइंट इज ओनली दैट कि जगदीश लुक ऑन द ग्रेजुएशन लेवल वी हैव अ लॉट अपॉर्चुनिटी यार अगर मैं टेक्निकली वैकेंसी की बात कर लूं मोटा मोटा बिकॉज आपने जो एफकैट के लिए भी अप्लाई किया होगा फ्लाइंग ब्रांच को भी रखा होगा प्रायोरिटी पे ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निक नॉन टेक्निकल कैटेगरी को भी आपने अप्रोच में रखा होगा फॉर्म जी फिलिंग सर. के टाइम पे जी जी सर. एंड अच्छी खासी वैकेंसी है 6-6 महीने पे बिल्कुल एक फैब में एग्जाम होना है एक अगस्त में होना है सीरियस से बिल्कुल जी क्लियर सर. है एक अप्रैल में होना है एक सितंबर में होना है आईसीजीपीएससी बिल्कुल क्लियर है अभी नेक्स्ट वैकेंसी फिर से घोषित होने जा रही है मार्च में फिर से एग्जाम होने हैं एंड सर. टीए भी इस बार अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है सीएपीएफ भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है माय पॉइंट इज दैट जी अगर सर. हम वाकई में फोकस्ड हो जाए ईमानदारी के साथ लाइक रिटर्न तो आपने प्रूव करके दिखा दिया है देयर इज नो क्वेश्चन मार्क एंड नाउ यू नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर द सेकंड फेज बिकॉज पीएचबी एंड एफएसबी इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज अच्छी स्किल्स चाहिए बिकॉज एसएसबी जैसा ही है थोड़े से डिफरेंसेस हैं जैसे हमारे यहाँ ड्यूरिंग एसएसबी टेस्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट तो उसमें हम वाईआर एंड पीपीडीटी करते हैं बट यहाँ थोड़ा वाईआर टेस्ट जो आपका है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है बिकॉज 30 मिनट में अराउंड 80 जी सर. क्वेश्चन अप्रोच करने हैं और बहुत प्रैक्टिस बहुत अच्छे टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है तो आपने अभी तक कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट वगैरह देखे हैं कि अभी तक कुछ नहीं देखा इससे रिलेटेड इस सब मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा पीएसबी के बारे में. मैं सिर्फ अभी वेट ही कर रहा था कि कब आपके साथ जी कनेक्ट होकर नहीं गाइडेंस एग्जैक्टली करेंगे. तो वी आर स्टार्टिंग हम अभी स्पेशली पीएसबी का स्पेशल बैच ही स्टार्ट कर रहे हैं वी आर गेटिंग कैंडिडेट फ्रॉम ओवरऑल इंडिया पूरे भारत से बच्चे हमारे साथ जुड़ने स्पेशली उनके हम ही तैयारी कराते हैं भारत के अंदर तो उनका हम 2 सेशन डेली रखेंगे वन सेशन स्पेशली फॉर द रीजनिंग एंड सेकंड स्पेशली फॉर द पीपीडीटी बिकॉज फॉर अस राइट नाउ द पीएचबी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जिनका पीएचबी क्लियर होगा वही एफएसबी के लिए जाएंगे एंड ऑब्वियसली उसके लिए एटलीस्ट 1 मंथ का तो समय मिलेगा ही मिलेगा
तो वो चीज अच्छा। वहां पे ऐड ऑन हो रही है। तो दस नथिंग इशू, डोंट वरी, इस बार हम पीएसबी में भी बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा फोकस तरीके से, विल डू इट, नो इशू। और डरना इसलिए नहीं, बिकॉज इसमें क्या है ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, एक रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, बट जो स्पीड प्रैक्टिस है, वो फॉर्मेट मिलना जी आपको सर। बहुत जरूरी है। तो हमने क्या प्लान जी किया सर। है कि हम अपने ऐप पे सेम फॉर्मेट पे सेम टाइमिंग पे वो टेस्ट के लमसम 10 से 12 सेट हम तैयार कर रहे हैं, बिकॉज इसको क्या है ना कि जगदीश कई सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 में 20 क्वेश्चन है, बाकी में सब में 10 10 होते हैं। तो हमने प्लान ये किया है बच्चा कि लाइक हम आपके लिए सेम प्रोसीजर, आप टाइमिंग एंड टेस्टिंग अरेंज कर देंगे। तो आपने क्या करना है कि इस समय डेली एक मॉक देना होगा। आप जितना मॉक देंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एंड आप रियली एनालाइज कर पाएंगे हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो सबको जानना होगा आईसीजीएसई में, कि इसमें 80% से बिलो जिनका स्कोर जाता है, स्पेशली जी ओआईआर सर। वाले पार्ट में, वो फाइनली जी। पीएसबी क्लियर नहीं कर पाते हैं। इवन यूर परफॉर्मिंग जी वेरी सर। वेल इन द पीपीडीटी, दस नथिंग मैटर। मेन मैटर इनके लिए जो करता है वो आपका ओआईआर टेस्ट है, उसमें अपने को स्कोर अच्छा करना हो। ठीक है, जी सर। चलिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अभी तो आपका लाइफ जस्ट स्टार्ट हुआ है। और मुझे लगता है जी सर। जी। 2024 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, बिकॉज आप पीएचडी के लिए जाएंगे 2024 में, एंड फिर उसके बाद आप एफकैट का एग्जाम बैठेंगे 16 17 18, कोई भी डेट्स आपकी हो सकती है फैब में। देन आप 21 जी अप्रैल सर। को सीडीएस एग्जाम के लिए बैठोगे, वैकेंसी आ ही गई है, कल ही अनाउंस हो गई वैकेंसी, तभी उसका भी फॉर्म आप फिल कर रहे होंगे, सीडीएस का भी। एंड सर इसी फॉर्म साल आपको, फॉर्म भी भर दिया हाँ, मैंने, कल ही फॉर्म भर दिया। अच्छा, ये ठीक है, फर्स्ट डे कंप्लीट कर देना चाहिए। और उसके जी साथ सर। साथ इस बार आपको सीएपीएफ का भी मौका मिलेगा और टीए का भी मौका मिलेगा, तो मतलब एक भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, सारी अप्लाई जी सर। करनी है। इट्स ऑल ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और आप किसी भी इंट्री से जाते हो ना, यू गोइंग फॉर द कमीशन कैटेगरी, ए ग्रेट ऑफिसर एंड ए ग्रेट फैसिलिटीज, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो मेरी थैंक तरफ से सर। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। एंड वी रियली फील प्राउड, बिकॉज महाराष्ट्र से हम बहुत जुड़े हुए हैं, लॉट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट, जो जी पैशन सर। हमें देखने को मिल रहा है, इट्स रियली फील प्राउड। मैं आपको एक बड़ा अच्छा जिग्रीस एनालिसिस देता हूँ, कि हमेशा क्या रहा, जब हम आईएमए का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं या एनडीए का रिकॉर्ड हम उठा के देखते हैं, एकेडमी का, स्पेशली इंडियन मिलिट्री एकेडमी या नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो अमूमन हमेशा यूपी ने कब्जा किया, यूपी इज ऑलवेज इन टॉप इन द ऑफिसर रैंकिंग, मतलब वो सबसे ज्यादा ऑफिसर्स देते हैं। अभी उत्तराखंड ने 2 3 बार से बहुत तगड़ा लीड किया है, बिकॉज छोटा सा राज्य है यूके, बट गिविंग नाइस नंबर ऑफ ऑफिसर्स। फिर उसके बाद क्या होता था कि हम लोग बिहार की बात करते थे, हरियाणा की बात करते थे, राजस्थान की बात करते थे, बट आज मुझे बहुत प्राउड होता है कहते हुए कि हम महाराष्ट्र की भी बात करते हैं नाउ। गुड नंबर, मतलब पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ ऑफिसर्स इंक्रीज किए हैं इस प्लेस में, आर्म फोर्सेस के अंदर, तो नाउ फ्रॉम द महाराष्ट्र, तो दैट्स रियली ग्रेट, ग्रेट ग्रोइंग। तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि लाइक द कैंडिडेट फ्रॉम देयर, और मैं मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, आई हैव सीन दैट एटीट्यूड, दैट डेडिकेशन टुवर्ड द फौज, जो महाराष्ट्र के बच्चों में वो कमाल का है, एंड दिस इज एग्जैक्टली जिस वजह से वो डे बाय डे अपने सिलेक्शन को ग्रो कर रहे हैं फौज के अंदर। तो बस आपके जी सर। पास भी जी ग्रेट सर। अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से एक एग्जाम्पल सेट करिए देश के सामने, बढ़िया ढंग से। जी चलो सर। कुछ प्रश्न कर लेता हूँ मेरे जो बेसिक्स हैं इस समय। सबसे पहली चीज, 100 क्वेश्चंस थे आपके सामने, थोड़ा जी बताएं सर। रिटर्न के फॉर्मेट, क्या मॉड्यूल था, किस तरह का सिस्टम था, थोड़ा एलिबरेट करें इसके बारे में। सर। सर मेरा 5 दिसंबर को पेपर था कोल्हापुर में। जी। और सर मेरा पहला ही शिफ्ट था, सुबह का एग्ज़ाम था मेरा। जी। और पेपर सर जितना मतलब जैसा आप यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे टीचर्स ने पढ़ाया था, जी। उसी बेस पे था, वही सेम था, कोई ज़्यादा डिफरेंट कुछ भी नहीं था। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, बट मोस्टली मोर मोर देन 95% क्वेश्चन जो थे वो मैच करते थे, या तो वही थे। और इसकी वजह से काफ़ी इजी रहा, इसलिए ऐसा लगा नहीं कि भीड़ में मैं बैठा हूँ। ऐसा लगा कि हाँ मैं कर ही रहा हूँ और आगे निकलना ही है। मैंने एग्जाम दे के मेरे को ऐसा लगा कि हो ही जाएगा, तो मतलब हंड्रेड एग्जैक्टली। परसेंट श्योर ही था इस बारे में। ये कॉन्फिडेंस आना जरूरी भी है एग्जैक्टली पेपर देने के बाद। तो बेसिकली जैसे 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के टाइम थे, तो 100 क्वेश्चंस पूरे एक साथ थे कि उसमें सेक्शन वाइज बांट रखा था पेपर? सर सेक्शन वाइज नहीं था, हम्म, सब मिक्स थे, बट ऐसा था कि इंग्लिश के अगर है तो कंटिन्यूसली इंग्लिश के ही चल रहे हैं, ठीक या है। तो मैथ्स के ही चल रहे हैं। बट ऐसा उन्होंने राइट। सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं किया था कि ए बी सी डी, पर राइट। कंटिन्यू थे सारे क्वेश्चन। हम्म। ठीक है। तो बेसिकली जो अर्थमेटिक का पार्ट था या रीजनिंग का था या जीके का था या इंग्लिश का था, ये जो सारे पार्ट्स थे, मतलब क्वेश्चंस के लेवल बहुत टफ तो नहीं थे, मतलब लाइक जी इट्स अ सर। मॉडरेट लेवल, मतलब बहुत टफ तो नहीं रहे, जैसे कि यूपीएससी आपने जी सर। एक्सपीरियंस किया हुआ, बिकॉज यू अपीयर्ड फॉर द ओटी एग्जामिनेशन, तो आपको तो अच्छा अनुभव है, बिकॉज आप यूपीएससी भी अपीयर हो चुके हो। और इस पेपर को जो आप देखते हो, तो क्या डिफरेंस महसूस किया आपने दोनों पेपर पैटर्न पे?
सर एक तो यूपीएससी का पेपर काफी घुमा के होता है। बहुत काफी ज्यादा। मतलब आपको आपको अगर आंसर पता भी होगा तो उसमें जी। ऑप्शंस पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है, राइट पता होने के राइट। बावजूद भी। बट यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एक जी। एक लाइन के क्वेश्चन थे जीके के भी। और स्ट्रेट आंसर पता होगा तो टिक कर देगा बंदा, नहीं पता तो नहीं कर सकता, नहीं ऐसा ही कर था और पाएगा। कुछ ज्यादा मुश्किल वन नहीं था। लाइनर है सर। राइट। तो बेसिकली जो और इंग्लिश भी, बताएं। हाँ इंग्लिश भी ठीक ठाक था सर, इतना टफ नहीं था। अगर कोई बेसिकली हम्म। अगर पढ़ रहा है हर दिन 1 घंटा भी, थोड़ा बहुत ग्रामर उसे पता है तो अटेम्प्ट कर सकता है, वो अच्छा स्कोर कर सकता है इंग्लिश में भी। अच्छा, जैसे 120 मिनट्स थे और 100 क्वेश्चंस थे, तो टाइम मैनेजमेंट कितना मायने रखता था इस एग्जाम के लिए, और कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट किया जा सकता ऑनेस्टली? सर टाइम मैनेजमेंट हर एग्जाम में ही चाहिए, बट मेरा एग्जाम जी। तो सर एटलीस्ट 25 मिनट्स पहले हो गया था। मैंने हम्म। 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मैं राइट। बिल्कुल 100% श्योर था कि इसमें से कम मेरे 65 प्लस सही होंगे होंगे। बाकी गलत राइट। अगर हो जाए तो 5-6 गलत हो सकते हैं, पर ज्यादा गलत नहीं होंगे मेरे। तो मैंने जी। 75 की, और इससे आगे मैंने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता था कुछ नेगेटिव मार्किंग का। राइट राइट। तो बेसिकली एग्जैक्ट आपने 75 अटेम्प्ट किया? जी 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 सर। अच्छा, आपके माध्यम से जगदीश ये भी बताना चाहता हूँ, बच्चों को बड़ा फोबिया रहता है कि सर 100 जो अटेम्प्ट किया है उसी का सिलेक्शन होगा, तो ये बड़ी गलत फहमी है। मुझे लगता है कि अगर आपका 50 to 60% के बीच में अटेम्प्ट हो जा रहा है ईमानदारी के साथ राइट क्वेश्चंस, तब भी आप रिटर्न में क्वालिफाई है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कहीं से कहीं। जैसे और ये सब एग्जाम में हम देखते हैं, आप अभी एफकेट आप देने जाएंगे तो उसमें भी वही क्राइटेरिया है कि 50 to 60% आपने कर लिया। और सीडीएस में 50-60% करने का मतलब तो आप टॉपर हो जाओगे, मतलब टॉप लिस्ट में चले जाओगे ओवरऑल। उसका स्कोर तो कुछ ज्यादा ही जी सर चला ऐसा जाएगा। है, हाँ बच्चों को डर रहता है पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, नहीं, बट यही जो भी, गलत है। हाँ जो भी एजेंसीज है, मतलब जो भी सीडीएस कंडक्ट करा रही है अपना आईसीजी, उनका बड़ा ही है, कट ऑफ डिक्लेयर कर देंगे तो उसके अंदर जो बैटर पास हो जाएगा। फिर अगर कट ऑफ 150 है तो 151 हम्म। वाला भी सिलेक्ट है और 200 वाला भी सिलेक्ट है। तो पहले बात तो डरना नहीं चाहिए कि मुझे 100 के 100 करने हैं। अगर सिक्सटी बिल्कुल परसेंट सही। पेपर करो, अच्छे से करो, हंड्रेड अच्छे परसेंट से करो। चांसेस क्लियर होने के। दिस इज ऑल अबाउट, मुझे लगता है यही सबसे जरूरी चीज है, इसको हमको ख्याल रखना है जगदीश। नाउ 28 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम पीएसपी के लिए नहीं देंगे मेरे हिसाब से, 10 जनवरी के आसपास से शेड्यूल कर रहे हैं, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी जो भी टाइम इधर अच्छा है सर। आपके पास, एक बार आपको रीजनिंग पार्ट पे बहुत अच्छा काम करना। मेरे को सबसे बड़ा टेंशन स्पीड का है, बिकॉज ज्यादातर जो हमने फेल्योर देखा स्पीड की वजह से, बिकॉज 5 सेकंड के भी क्वेश्चंस हैं। अब सोचो 5 सेकंड में आपको अच्छा, प्रोजेक्टर पे क्वेश्चंस देखने भी हैं और ओएमआर पे टिक भी करना है, तो थोड़े तो चैलेंज पाँच रहते सेकंड के भी हैं। क्वेश्चन है? हाँ जी, 5 सेकंड पाँच के भी सेकंड के भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है? जी, 5 सेकंड के भी है, ओके। 8 सेकंड के भी है, 6 सेकंड के भी है और 10 सेकंड के भी है। ये भी क्वेश्चन है और बहुत अटेंटिव होना पड़ता है। इसलिए हमने कहा सर सबसे पहले तो सेट तैयार कराओ, इन्हें कम से कम एक बार रियल एक्सपीरियंस तो हम दे दें, क्योंकि क्या होगा ना, जब तक आप जगदीश एक बार रियल एक्सपीरियंस नहीं करोगे कि आखिर सर कैसे आता है पेपर, तो फिर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उस चीज को लेकर। तो नहीं अभी हम सर, लोग आज ही ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं जगदीश जी। बताएं। ऐसे ये मुझे पता नहीं था कि मतलब 5 सेकंड के लिए भी टाइम दिया जी। जाएगा किसी क्वेश्चन में। तो मतलब जी। देखने में और लिखना है, फिर उस सर शायद टिक करना है या हम्म। वो मार्कशीट है, वो नहीं पता सर कैसा है वहाँ जी। पे। ओएमआर पे टिक करना होता है, फिर नहीं बोला नहीं करा, टिक करना होता है। तो और एक अच्छी चीज तो मैं आपको बताऊं कि कल मैंने पूरा पेपर पैटर्न 10 बजे कल वीडियो रिलीज कर रहा हूं, तो उसमें मैंने सारी डिटेलिंग, सारे सेक्शंस को, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सेकंड्स के आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे हमने बता दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम मॉक यूट्यूब पे भी अपडेट करवाएंगे, बाकी ऐप पे तो हम शुरू करने ही जा रहे हैं कंटिन्यूस तरीके से। तो जगदीश, मेरी तरफ से जी आपको सर। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक आईसीजी अपने आप में एक बहुत क्रेडिबल एग्जाम है, इससे आपका थैंक आत्मविश्वास बढ़ा है बच्चा। थैंक यू सर। एंड अब जो फर्दर एग्जाम्स हैं आप सब में कमाल हेलो करेंगे, क्योंकि आपको एक हेलो। आइडिया तो ये लग ही गया कि एग्जैक्टली क्या लेवल है और मेरे को कैसे चीजों को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, अभी जस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ और पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। तो आत्मविश्वास आपका अच्छा होगा। बस क्लासेस शेड्यूल के लिए गौरव सर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा एक बार कि कब से प्लान है, कैसे शेड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे इधर एक भी दिन आप छोड़ने लायक नहीं है, सब पे काम करना होगा आपको, ठीक है? हाँ जी सर, मैं सर के साथ कांटेक्ट में रहूंगा, पूछ लूंगा सर। हाँ जी। और ऑनलाइन फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। जी सर, आप थैंक यू सर, जितने थैंक दिन यू। है हम उतने मैक्सिमम मॉक्स प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग बिल्कुल और वही क्वेश्चंस हम अप्रोच करवा देंगे आपको एग्जैक्टली जो वहां आने हैं, ठीक है ना? हमने काम किया हुआ है, हमारे पास फॉर्मेट भी आईसीजी ने पहले से भेज रखा है कि यही क्वेश्चंस है, इसी पैटर्न पे आते हैं, इस तरह के आते हैं, तो बच्चों को यही प्रैक्टिस करा के भेजा जाए जिससे वो अच्छा कर पाए, ठीक है? जी सर, जी उसको सर, करते हैं। जी सर, चलिए नमस्ते कर। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक दिस। बातचीत होगी, बस थैंक यू आप सर। रिजल्ट फटाफट क्लियर करो पीएसबी, देन वी हैव अगेन कन्वर्सेशन, ठीक है? यस सर, यस सर, थैंक यू सर।